حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها آمنت بالله وصدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمته فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. انتہائی محترم و مکرم بزم طلباء خدیم جدہ کے جملہ ذمہ داران، ناظرین کرام، سامعین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو پھر ایک مرتبہ عید الاعیاد یعنی ماہ ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بھرا مہینہ عطا فرمایا۔ اس موقع پر بزم طلباء خدیم کی جانب سے یہ جو انتہائی وقت کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق جو پروگرام اور عنوانات رکھ رہے ہیں، اس ذریعے سے دل کی گہرائیوں سے میں آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مہینے کی آمد اور چاند کے دکھنے کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اقدام کو، خصوصاً بزم طلباء خدیم جدہ کی جو اتنی صحیح اور کوششیں ہیں، اللہ رب العالمین اس کی برکتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظیم اور بنیادی مشن ہے، لوگوں تک دین پھیلانا اور اسلام کی مدد و نصرت کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، خود نیک بنتے ہوئے دوسروں کی فکر کرنے کے جو عظیم مقصد ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس پر ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ کاربند ہونے، ہم کو ہماری نسلوں کو خیر و عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں اور ناظرین سامعین سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت مہینے کا آغاز ہمارے پاس آج ہی سے شروع ہو چکا ہے، آج شام نظر آ چکا ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ اسی مناسبت سے یہ 12 روزہ محافل ہے جن کے عنوان سے ہی ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنے چنندہ اور وقت کے حالات اور مناسبت سے اس کا انتخاب کیا گیا۔ پھر خاص طور پر جو بڑے بڑے علماء کرام دیگر ہیں ان کا بھی انتخاب بہترین کیا گیا اور پھر ہم سب کو انہی کے لیے سننا ہے۔ تو آج کا جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قتل و غارت گیری اور اسلام۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، قتل و غارت گیری جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں تو اسلام تو ایک مکمل دین ہے، الحمدللہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہٹا بھی دیں تو یہ عنوان ہی اتنا خطرناک اور بھیانک ہے کہ فی نفسی ہی دنیا کا کون سا بھی مذہب بلکہ لفظ انسان اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اتنا خطرناک اور بھیانک اور انتہائی بہت بڑا جرم، گناہ اس کو سمجھا جاتا ہے، انسانیت سوز اس حرکت کو سمجھا جاتا ہے۔ پھر تو دین اسلام کی بات
तो दीन इस्लाम तो इसी की बुनियाद पर है। दीन इस्लाम तो इसकी हर तरीके से जिस सतह पर हो इसकी मजम्मत करता है। आप देखेंगे कि इस्लाम जितना इंसानी जान, इंसानी माल, इंसानी इज्जत और आबरू की तहफ़्फ़ुज़ का इक़दाम करता है, दुनिया के किसी मजहब में आपको ये नहीं मिलेगा। तो बुनियादी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मज़ाहिब तो दुनिया में बहुत हैं, और फिर उसमें मजहब इस्लाम की खुसूसियत तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही है, ये अल्लाह का पसंदीदा दीन है, क्यों ना हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए जो मजहब बेजार लोग भी हैं नऊजुबिल्लाह, वो भी इस हरकत को, यानी कत्ल व गारतगिरी को, मारपीट को, लड़ाई झगड़े को, दहशतगर्दी को, इंसानी जान के उसको वो खत्म करने को हरगिज 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 पसंद नहीं करते। तो आलमी सतह पर यकीनन आज हर सुबह जब उठकर हम अखबार देखते हैं या सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरीके से हम तक खबरें पहुंचती है, तो मालूम होता है कि फलां का कत्ल हो गया, फलां का कत्ल हो गया, फलां मुकाम पर कत्ल हो गया। पहले तो दूर दूर कहीं सुने में आती थी, लेकिन आज हमारे अतराफ व अकनाफ में भी, हमारे इलाकों में भी इस तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तौर पर बज़्म तलबा खदीम जद्दा के जुमला जिम्मेदारान को सलामत रखे कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इस मुबारक व मसूद मौके पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के मौके पर इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया, यकीनन काबिल मुबारकबाद है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, खुतबा मसनूना में जिस आयत करीमा को हमें पढ़ने और सुनने का शरफ हासिल हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। यानी जो कोई जानबूझकर किसी मोमिन को कत्ल करता है, मार देता है, उसकी जान ले लेता है, मुतअम्मिदन जानबूझकर, फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, और उसके लिए तो बड़ा भयानक मसला, उसकी जजा ये है कि वो जहन्नम में होगा जो हमेशा के लिए है। यानी यहाँ पर मुतअम्मिदन जानबूझकर का मतलब नाहक, नाहक किसी का जान ले लेता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना भयानक उसके लिए अजाब बताया। जानते हैं हम कि जहन्नम कैसी चीज है, अंदाजा कर सकते हैं कि जहन्नम की आग की जो दहशत है, उसको कई पानियों से 70 मरतबा पानी से ठंडा 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 करने के बाद जो आखिरी दर्जे की जो उसके अंदर जलन होती है, दहशत होती है, वो आग आज हम दुनिया में महसूस कर रहे हैं। पकवान के लिए, कुछ भी कामों के लिए, जो कुछ भी हम दुनिया में आग देख रहे हैं, तो इससे 70 दर्जे गुना शिद्दत की जो आग होगी जहन्नम की, वो क्या भयानक होगी, इसका हम कोई इंसान संजीदगी से सोचे तो उसका अंदाजा कर सकता है। तो फिर याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि अगर नाहक तुम किसी मोमिन की जान लेते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दोज़ख में हमेशा हमेशा आपके लिए ठिकाना बनाएगा। तो अब यहाँ पर एक बात तो वाज़े हो गई कि एक मोमिन की जान की हैसियत क्या है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हमेशा के लिए दोज़ख के अजाब का उसके हक में फैसला फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर जब नाहक की बात आती है, तो हमको गौर करना है। आजकल ये हमारे अंदर, यानी हमारे अतराफ व अकनाफ में जो बातें देखने में, वाक़या सुनने में आ रही हैं, ये तो पहले आलमी सतह पर होती थी, इंटरनेशनल लेवल पर होती थी, लेकिन आज हमारे गली कूचों में ये मामलात पेश आ रहे हैं, और समझते हैं कि ये समझते हैं कि हमने हमारे लिए ये किया था, हमारे हक अदा नहीं किए थे इसलिए हम ऐसा किए, हमारे बारे में ऐसा बोला था इसलिए किए, हमको ये चीज मिलनी थी नहीं मिलने दिए थे ऐसा कर दिए, हमको ये बोले इसलिए ऐसा हो गया, ये फला डीलिंग इसको रोक दिए थे इसको ऐसा हो गया, ये नुकसान का बाइस बना इसलिए हमने इक़दाम कर दिया। यहाँ पर जो, और कुरान मजीद के दीगर मुकामात पर और अहादीस करीमा में नाहक का जो बात बतलाई गई है, उसका फैसला आपको या मुझको या किसी को करना नहीं है। उसका फैसला अगर शरई हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, तो काज़ी उल क़ुज़ा को करना है,
इस्लामी हुकूमत के जो जिम्मेदार हैं शरई एतबार से उनको करना है, या यूं समझिए जो जिस मुकाम पर रहते हैं उस मुकाम की अदालत को फैसला करना है, उस मुकाम के महकमाजात को, अरबाब मजाज को ये इख्तियार है कि कौन हक पर है कौन ना हक है, तो वो फैसला करती है। लेकिन आजकल क्या हो गया, हम एक दूसरे को फैसला करने वाले समझ चुके हैं। ना हक हो सकता है, हक तलफी हो रही होगी, किसी के मामला बिगड़ रहे होंगे, किसी का कुछ हो रहा होगा, किसी का नुकसान हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है, इंसानी जिंदगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लें। यहां पर देखिए हदीस शरीफ में है, इस्लाम कत्ल व गारतगिरी को कैसे पेश कर रहा है। कत्ल व गारतगिरी तो दूर की बात है, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मामले में कोई आप पर जुल्मन एक थप्पड़ मारे, मैं एक हदीस शरीफ का मफहूम आपसे अर्ज कर रहा हूँ, थप्पड़ भी मारे, तो आप अगरचे के हक पर हैं, वो ना हक मार रहा है, और आप उसको जवाबन और ज्यादा और उसका जवाब भी दे सकते हैं, तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र कर लें, आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला देगा और वो अपनी सजा भुगतेगा। क्यों? अगर जवाब में आप मारे तो फिर मारने में इतनी शिद्दत हो जाए कि मिसाल के तौर पर 70 डिग्री 90 डिग्री के तौर पर कि प्रेशर से वो मारता है, और आप 90 के बजाय 91 92 95 100 के प्रेशर से आप मार रहे हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़ियामत के दिन वो जो एक्स्ट्रा मारा जा रहा है जितने प्रेशर से, उसका भी तुमसे हिसाब लिया जाएगा, उसका भी तुमको पूछा जाएगा कि तुमने ये एक वो तो मारा था 90 के प्रेशर से, आपने 95 क्यों मारा। यहाँ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन किराम, बात थप्पड़ की हो रही है, बात सिर्फ मार की हो रही है, एक मार एक घूंसे की हो रही है, जिसके प्रेशर के बारे में बतलाया जा रहा है कि अगर सामने वाला 90 डिग्री मारे और आप 95 मारे, 92 मार दिए, तो वो 2 और 3 डिग्री जो प्रेशर बढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में पूछेगा। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आप अंदाजा करें, इतना ही नहीं बल्कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इब्ने माजा शरीफ की हदीस है। यहाँ आप गौर फरमाए, उसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूँ। अभी तो बात हुई थी कि सिर्फ प्रेशर बढ़ने पर कल क़ियामत के दिन पूछा जाएगा, और ये देख लें थोड़ा पसे मंजर कि यकीनन आप हक पर हैं, मारने वाला यकीनन वो नाहक आपको थप्पड़ मार रहा है, जुल्मन मार रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी हक पर है आप भी हक, नहीं, वो जुल्मन मार रहा है और आप मजलूम हैं, लेकिन फिर भी आपको सब्र करने की तलकीन दी गई। क्यों? इसलिए इसलिए कि कल पूछा जाएगा। आइए इब्ने माजा शरीफ की इस हदीस शरीफ को भी गौर करते हैं, जिसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब दो मुसलमान आपस में अपने दोनों तलवारों से लड़ते हैं, जब दो मुसलमान आपस में अपने दोनों तलवारों से लड़ते हैं, तो उसमें से एक का कत्ल हो जाता है, एक का कत्ल हो जाता है, तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक का कत्ल हो जाता है तो कातिल भी, कातिल तो वैसे गुनाहगार है ही है, कातिल तो गुनाहगार है ही है, इसी तरह मकतूल के बारे में भी कहा जाएगा कि ये दोनों के दोनों जहन्नमी हैं, कातिल भी जहन्नमी है और मकतूल भी जहन्नमी है। सहाबा किराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल का तो जहन्नमी होना ये बात समझ में आती है, मकतूल कैसे जहन्नमी हो गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या मेरे सहाबा सुनो, दोनों ने तलवारें निकाली, दोनों आपस में लड़ रहे थे, एक ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया, तो वो जहन्नमी हो गया। जो मकतूल है वो जहन्नमी इसलिए है कि वो भी कत्ल का इरादा कर चुका था। ये और बात है कि ये गालिब आ गया, इसने कत्ल कर दिया, लेकिन ये भी तो कुछ कम नहीं था, इसके भी अज़ाइम कत्ल ही के थे। तो देखे, अंदाजा लगाए कातिल और मकतूल का क्या हाल है। कातिल और मकतूल यहां सिर्फ इरादा किया है,
जब हम उमूमन समझते हैं कि ये कातिल है, ये मकतूल है, जो कातिल है वो जालिम है, जो मकतूल है वो मजलूम है, ये हर सूरत में नहीं होता। लेकिन यहाँ अंदाजा लगाएं, जो आम तौर पर तलवारें निकाल कर, तलवारें ना सही हथियार निकाल कर, मुहलिक हथियार निकाल कर, जिससे जैसा जम बनता है ऐसा निकाल कर हम एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, तो अंदाजा लगाएं कि इस्लाम ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने मुबारक अहादीस करीमा के जरिए से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, बेसत के बाद लोगों को यानी हमको आपको कैसी तालीमात दी हैं। फरमाते हैं कि जो अपने अंदर कत्ल का आज़म भी रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हक में जहन्नम का फैसला फरमाते हैं। तो ये देखें फिर तीसरी हदीस शरीफ अगर जिस पर हम सुनकर हमको अंदाजा होगा कि इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो बात थी कत्ल की, ये तो बात थी कातिल और मकतूल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामाईन किराम, ये चीज हमको और खास तौर पर इस जमाने में जिस सूरत हाल से, जिस मामले से हम गुजर रहे हैं, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, पूरे माशरे के लिए इस हदीस शरीफ को 24 घंटे अपने पेश नजर रखना जरूरी है, जिसके रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है और इब्ने माजा शरीफ की ये रिवायत है। मफहूम है हदीस शरीफ का, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कत्ल के मामले में कातिल के हक में कातिल के हक में एक हर्फ के बराबर भी उसकी मदद करता है, एक हर्फ के बराबर भी, यानी इंतहाई, हर्फ का मतलब आखिरी चीज बतलाना मकसूद था, यानी कोई बड़ा हथियार सप्लाई करना या फिर बड़ी उसके लिए बातें पेश करना या उसके लिए पैसे लेना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो आजकल चल रहा है कॉन्सेप्ट, ये तो बहुत बड़ी चीजें हैं। एक हर्फ के जरिए भी किसी मोमिन के कत्ल के मामले में कातिल का कोई मदद करता है, एक हर्फ के बराबर भी, एक हर्फ के बराबर भी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके दोनों पेशानियों, दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर ये लिख दिया जाता है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से महरूम कर दिया गया है। ये वो शख्स है जो अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया गया है, महरूम कर दिया गया है। उसके दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर लिखा जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं क्या हो रहा है। ना उसने कत्ल किया था, ना उसने हथियार तेज करके दिया था, ना उसने गोली लोड कर कर दी थी, ना मारने के लिए बड़ा पैसा ऑफर किया था, बस एक हर्फ कहा था, हर्फ बराबर भी किसी मोमिन के कत्ल के मामले में कोई मदद करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माथे पर लिख देता है कि ये हमेशा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से इसको महरूम कर दिया है, दूर कर दिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस इसको कर दिया गया। आप अंदाजा फरमाएं, ये वो अजीम शान इस्लाम है जो इस तरह की किसी के हर्फ बराबर भी मदद करता है तो उसकी मजम्मत आई है। जो मकतूल होते हुए भी चूंकि उसके अंदर कत्ल का जज्बा था फिर भी उसको जहन्नुमी करार दिया गया। आप इस किस तरह से भी जायजा लेकर देखें, इस्लाम इतने इतने चीजों, इस तरह के बेशुमार रिवायतें हमको मिलेंगी, इतने इतने एंगल से, इतने इतने जाविये से लोगों को इस भयानक जुर्म से, गलती से रोकना चाहता है। शायद ही दुनिया के किसी मजहब में इस तरह की नजीर मिलेगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गुनाह कबीरा करार दिया गया है। गुनाह कबीरा क्या है? हम जैसे ही गुनाह कबीरा की बात समझते हैं तो गुनाह गुनाह सुनना पढ़ना हमारे लिए आसान हो गया, नौजुबिल्ला। लेकिन गुनाह कबीरा, ये गुनाह कबीरा है कत्ल करना। आप अंदाजा लगाएं, आल इस्लाम चूंकि एक आलमगीर मजहब है और फिर ये वो मजहब है जिसका एक आफाकी पैगाम भी है, रहती दुनिया तक, जब तक रुए जमीन पर इंसान नाम की कोई चीज रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम रहेगा, उसका पैगाम रहेगा, उसके जितने भी आफाकी पैगामात हैं वो रहेंगे। आप उस पर गौर कीजिए। ये जो हमारा क्रिएटर है, खालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो हमको गाइडलाइंस दे रहा है, वो हमें सिखा रहा है कुरान के जरिए। आकाए दो
हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस के जरिए, तो फिर अंदाजा लगाएं। सीधा सीधा आपको आम फहम बातों में जो समझ में आए, ऐसी 2-3 रिवायतें मैंने आपके सामने रखी है। तो फिर मजहब इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उस पर अंदाजा लगाएं कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया एक दूसरे मकाम पर सूरह माइदा में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। किसी ने एक जान को नाहक कत्ल कर दिया। पहले जो खुतबा मसनूना में हमने जो आयत सुनने और सुनाने का शरफ हासिल किया था, वो एक मोमिन की बात थी। मोमिन की बात थी, कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल करता है मुतअम्मिदन, जानबूझकर, यानी नाहक। और फिर नाहक का मतलब ये समझते हैं कि मैं हक पर था, वो नाहक था, लिहाजा हमने खत्म कर दिया। ये नहीं, हक पर है या ना हक पर है, ये वक्त का काजी या अदालत या वो अरबाब मजाज उसका फैसला करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। तो अब वो तो बात थी मोमिन की। अब आए यहाँ पर जो सूरह माइदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वमन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन, यानी किसी ने किसी जान, किसी इंसानी जान की, ना इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, औ फसादन फिल अर्द, या जमीन पर फसाद बपा कर दिया, तो क्या हुआ? उसने क्या उसी शख्स को मारा? नहीं, बल्कि उसका, उसके गुनाह का लेवल, उसने जो क्राइम किया है उसका जो लेवल है वो फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, इंसानियत ही को कत्ल कर दिया। क्यों ना हो कि जिसके अंदर एक इंसान की जान का लिहाज नहीं, अरे वो इंसान जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना खलीफा बनाया है, जिसको खलीफा बनाया है, जिस चीज से इंसान को बचना है, आज नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला वही चीजें हो रही हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम थोड़ा गौर करें, जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था, वो अल्लाह इंसान को पैदा करने का फैसला फरमा रहा था। आप पहला पारा पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, उसके तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े आसानी के साथ, बड़े आसान अल्फाज में इरशाद फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बेशक के मैं दुनिया में जमीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, पैदा करना चाहता हूँ। तो फिर फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा कि मालिक तू क्यों पैदा फरमा रहा है? अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, वो आपस में खून खराबा करेंगे, खून खराबा करेंगे। फरिश्ते जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुबह शाम इबादत करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, हम बयान करते हैं, रुकू की हालत में है, सजदे की हालत में है, वो मासूम फरिश्ते जो हमा वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में है, जो कि उसका हक है, वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह तेरी इबादत तो हम कर रहे हैं, जब तू जमीन में अपने खलीफा को पैदा करेगा, वयस्फिकु दिमा, वो आपस में खून खराबा करेंगे, खून बहाएंगे, कत्ल गारतगिरी में मुलविस होंगे। ये फरिश्तों का दावा था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खलीफा इंसान की देखिए कितनी लाज रख रहा है, कैसे उनको अपने अंदर अपने करीब कर रहा है। वो रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वयस्फिकु दिमा, फिर कैसा आगे फरमाता है, नहीं नहीं, ये हाल हकीकत तो हम जानते हैं, हाल हकीकत तो हम जानते हैं इंसान को पैदा करने की, ये ऐसा नहीं है। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर बात ये पूरी तफसील 2-3 आयतों में आ गई है, जिसमें मैं खास तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त इंसान को, यानी आपको हमको पैदा करने की बात हुई, खलीफा बनाने की बात हुई, जमीन पर भेजने की बात हो रही थी, तो फरिश्ते उसका इनकार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको फरमाया कि नहीं नहीं, ये मेरे बंदे ऐसे नहीं हैं, ये मेरे बंदे ऐसे नहीं हैं। ये मेरे बंदे जब दुनिया में जाएंगे, इल्म सीखेंगे, लोगों की हिदायत का जरिया बनेंगे, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का फरीजा अदा करेंगे, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से मुताल्लिक एक अच्छा गुमान, एक अच्छी हकीकत को पेश कर रहा है। तो आज हम ये कुरान, ये हदीस, ये सारी चीजों से दूर होकर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। नौजुबिल्लाह, कुछ दिन पहले तक, कुछ वक्त पहले तक ऐसा महसूस होता था कि कुछ गैर ही हमारे दुश्मन हैं। आज खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता, ऐसा मंजर दिख रहा है
کہ اب ہم کو کسی غیر کی نہیں ہمارے اپنوں سے پریشانی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا پر دیکھ رہا ہوں مگر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جاتا مگر دیکھ رہا ہوں، کیا کیا جائے۔ وہ انسان جس کا ذمہ اللہ رب العزت فرشتوں جیسے نیک صفات کے سامنے اپنی چاہت کو پیش کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے۔ ہم سوچیں اللہ ہماری تائید کر رہا ہے، اللہ ہماری طرفداری کر رہا ہے، اللہ ہمارے اپنائیت کو پیش کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو میرے بندے ایسا نہیں کریں گے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی کو چھوڑ کر آج ہم کتنی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے معاملے میں دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ ایسی کیفیتیں ہر دن ہر صبح ہم کو کچھ نہ کچھ ایک انداز میں سننے میں آ رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے علاقے کے ہمارے لوگ، ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی، ہماری کلچر، اس کو بہت بڑا ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسا جب کبھی بھی ہوتا ہے جبکہ مسلمان، جیسا آپ نے ابھی سنا، قرآن مجید کی 2 آیتیں اور 3 احادیث شریف، ابن ماجہ شریف، بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ یہ تو بالکل مختصر وقت میں 2-3 بنیادی باتیں تاکہ آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں رہ جائے، یہ میں نے عرض کیا۔ ایسے سینکڑوں احادیث شریف آپ کو قرآن مجید کے کئی آیات اور واقعات ہم کو ملیں گے، بلکہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ حدیث شریف کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کا طواف فرما رہے ہیں۔ کعبے کا طواف مکمل کرنے کے بعد کعبے کی طرف نظر فرما کر کہتے ہیں کہ اے کعبہ، یقیناً تو بہت مکرم ہے، بہت معظم ہے، بہت حرمت والا ہے، بڑی تعظیم ہے، مگر اللہ کی قسم تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی جان کا بڑا احترام ہے۔ کدھر کعبہ ہے، کدھر کعبہ ہے، اس کی کیا عظمت ہے۔ سارے مسلمان دنیا کے جس خطے میں ہوں، کعبے کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کا منہ اگر، اس کے چہرے کا رخ اگر کعبے کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوگی، ورنہ لاکھ وہ پاکی اختیار کر لے، لاکھ وہ خشوع اور خضوع اختیار کر لے، لاکھ وہ قرآن نماز میں قرآن کی تلاوت کرے، لاکھ وہ جماعت بنائے، جو کچھ کرتا ہو، صرف اس مقدس کعبے کی طرف اپنے چہرے کا رخ نہیں کرتا تو اس کی عبادت کی اس کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے۔ اس کعبے کو مخاطب کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً تیری عظمت بہت ہے، یقیناً تیرا مرتبہ، تیری تعظیم، تو بڑا حرمت والا ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت اور اس کی جان ہے۔ تو کہاں گئی یہ سب کچھ حقیقتیں؟ تو برملا ہر کسی کو برملا یہ کہنا پڑتا ہے، اور مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے۔ یقیناً اس کی وجہ اور کچھ نہیں، بس یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم احادیث شریفہ سے دور ہو گئے، ہم اسلامی ماحول سے دور ہو گئے، ہم اسلامی کلچر سے دور ہو گئے۔ کمانا ہماری زندگی ہو گئی، سٹیٹس ہماری زندگی ہو گئی، ڈگریاں ہماری زندگی کا عین مقصد ہو گیا۔ یقیناً کریں کسی بھی ڈگری سے اللہ رب العالمین، اسلام، قرآن اور حدیث شریعت نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ یہ ڈگری حاصل نہ کریں، آپ عہدے حاصل نہ کریں، آپ اچھا نہ کمائیں، کبھی اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن بنیادی طور پر ہم کو اسلام عملی طور پر ہم سے یہ متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ آپ چاہے دنیا کا کچھ بھی کرے، لیکن دین اعتبار سے بنیادی تعلیمات، قرآن اور حدیث جیسی چیزیں آپ سیکھیں، قرآن اور حدیث جیسی چیزیں آپ اس کو سیکھ کر اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ تو الفاظ دیگر یہ کہنا بڑا آسان ہوگا، خدارا کہ اپنے بچوں کو آپ جو بناتے ہوں بنائیں، جو پڑھاتے ہوں پڑھائیں، جو ڈگری دیتے ہوں دے، جو عہدہ دلاتے ہوں دلائیں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنائیں، اسلامی تہذیب اس کو سکھائیں، اسلامی کلچر اس کو سکھائیں، انسانی جان کی اہمیت، انسانی جان کی عزت، انسان کی عزت، انسان کا اکرام، انسان کی تعظیم، کوئی بھی لفظ انسان ہو، بعد میں مذہب ہے، بعد میں رشتہ ہے، بعد میں اس کے حقوق آتے ہیں، لفظ انسان، ارے ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، آپ غور کریں، جانوروں کی بھی جانوں کا احترام کرتا ہے،
जानवर की जान का भी एहतराम करता है कि जानवर है, उसका मुंह नहीं है, दरख्त है, इसके बारे में आज हम नहीं बल्कि आप माइकल हार्ट की किताबें, अंग्रेज ऑथर्स की किताबें उठाकर पढ़िए, उन्होंने इस्लाम के बारे में, उन्होंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में वो लोग जितना एक ओपन माइंड होकर लिखे हैं, शायद कोई मुसलमान लिखता तो उस पर ये इल्जाम लग जाता कि ये अपने नबी से मोहब्बत में या अपने दीन की तायद में, अपने मजहब की तायद में लिख रहा है। लेकिन आप उन गैर मुस्लिम, यहूदी, नसरानी या फिर कोई और जो मजहब बेजार जो लोग होते हैं, उनके ऑथर, उनकी किताबें देखिए, उनकी किताबें पढ़िए, जिसमें जितना प्रोटेक्शन इस इंसानी जान को है, वो जो बरमाना लिखे हैं किताबों में, उसका हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो वो मजहब जो लोगों को इंसानी जान की कदर सिखाने आया था, वो मजहब जो इंसानी जान की इज्जत व एहतराम सिखाने आया था, आज उसी मजहब के लोग आपस में एक दूसरे की जान के लाले पड़े हुए हैं, एक दूसरे की जान की ताक में पड़े हुए हैं। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इंतहाई अफसोस की बात है। इस पर जितनी मजम्मत की जाए, इसमें कोई बात उठी नहीं रह जाती, जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन अब सवाल ये होता है, ऐसे हालात पैदा होते क्यों हैं? मजम्मत तो हम देख लिए, उसकी हुर्मत कि एक हर्फ भी कोई किसी की मदद कर रहा है तो अल्लाह की रहमत से मायूस है, उसके दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर लिख दिया जाएगा। मकतूल भी है क्योंकि वो भी जान लेना चाह रहा था, उसी को भी जहन्नमी करार दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी नौबत आती क्यों है? हम उमूमन जब कभी भी कोई मसला पेश हो जाए, आपकी हमारी ये फिक्र होना चाहिए कि इस मसले के पीछे पसे पर्दा क्या बातें हैं, क्या अनासिर है, क्या वजूहात है, उस पर हम गौर करें। एक तो बुनियादी चीज यही है कि हम इस्लामी एतबार से निरे जाहिल हो गए हैं। इस्लामी एतबार से हम बस कुरान पढ़ने को नाजिरा बचपन में 1 घंटा ट्यूशन पढ़ते हुए कुरान के अल्फाज को एक के बाद अदा कर देने को, जो जिसमें उस्ताद ज्यादा पढ़ते हैं, बच्चा थोड़ा पढ़ता है, हम समझ जाते हैं कि बच्चा दीनदार हो गया, कुरान मुकम्मल कर लिया, उसका हदिया होता है, गुलपोशी होती है, सब कुछ होता है। तो अब उसके बाद देखें, बल्कि इससे पहले भी मैं कई मरतबा आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, या जब कभी भी किसी से बात करने का मौका होता है, आपको भी मैं इस बज़्म तलबा खतीम जद्दा के इस बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आपको गौर करने की मैं आपको दावत दे रहा हूँ। सोचें आप कि एक बच्चा, एक तालिब इल्म, बड़ा ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ एसएससी तक आते हुए फर्स्ट क्लास से, अगर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी उसमें ऐड कर ले, तो ऑलमोस्ट 13 साल, 12-13 साल होते होते, यानी 5 साल की वो उम्र में अगर स्कूलिंग स्टार्ट करता है, 3 साल या 4 साल, 5 साल की जो भी हो, तो बहरहाल इस तरह 13 साल के इस मुख्तसर सी मुद्दत में, जो अभी उसका बचपना है, बेसिक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर एसएससी तक, कोई आला तालीम याफ्ता उसको नहीं कहा जाता, मैट्रिक, अगर मैट्रिक तक किसी को, तो इतने लेवल तक जाने तक थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच कर देखें, एक नॉर्मल लेवल का भी स्टूडेंट है, वो किसी भी जबान का होगा, किसी भी इलाके का होगा, किसी भी मजहब का होगा, मैट्रिक लेवल तक पहुंचने तक कम अज कम एक अंदाजे के मुताबिक 250 से 300 किताबें न सिर्फ वो पढ़ता है, बल्कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के लिए भी वो प्रिपेयर होता है। उसके बाज़ाब्ता एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट लिया जाता है, और फिर उसके उस पर नंबरात भी दिए जाते हैं, कामयाब और नाकाम के फैसले भी होते हैं। इस लेवल से वो तकरीबन 250 से 300 किताबें पढ़ लेता है अजबर, यानी पूरी मजबूती के साथ, पूरे इस्तेकाम के साथ, पूरी इस्तेकामत के साथ, पूरे इफाम उसके मफहूम को समझते हुए, क्योंकि उसको एग्जाम भी देना है। सिर्फ वो उसकी रीडिंग नहीं करता किसी बुक की, जैसा हम कुरान की रीडिंग करते हैं, यानी बच्चे को हम जो कुरान पढ़ाते हैं, सिर्फ रीडिंग नहीं करता, बल्कि उसके माने, उसका मतलब, उसके क्रॉस क्वेश्चन, उसके सब कुछ बैकग्राउंड से वो वाकिफ होता है। यानी मैट्रिक तक आते आते 250 से 300 किताबें वो पढ़ लेता है। लेकिन अंदाजा लगाएं आप, उसके बाद का आगे का तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना अंदाजा लगाएं
کہ وہی اگر مسلمان بچہ ہے جو ایک میٹرک لیول تک جانے تک 250 سے 300 کتابیں مضبوطی سے پڑھ چکا ہے، وہ بچہ اسلامی اعتبار سے کیا ایک کتاب بھی کم از کم قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک کتاب پڑھا؟ نہیں پڑھا. یا کم از کم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر سی لیکن مکمل سیرت کی ایک کتاب تو پڑھا؟ نہیں پڑھا. یا کوئی بزرگان دین اولیاء اللہ کی کوئی سیرت، ان کے حال و احوال کی کتاب پڑھا؟ نہیں پڑھا. تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو آج ہم اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، یہی ہوگا. اور خدا نہ خواستہ یہ تو آغاز باب ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم آج بھی اسلامی اعتبار سے ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ یہ وہ سلسلہ ہے جس کا رکنا تھمنا مشکل ہے. اور پھر دیکھیے، آپ خود غور کیجئے کہ ایک بچہ 250 سے 300 کتابیں پوری طریقے سے پڑھ رہا ہے جیسا اس کو پڑھنا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، پھر اس کے ایگزامز بھی ہو رہے ہیں، ٹیسٹ بھی لیا، سب کچھ لیا جا رہا ہے. لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی تو وہ ایک قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، جو اس کے لیے گائیڈ لائنس ہے، جو کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے، اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے وہ زندگی گزارنے کا، وہ ایک علاقے کا نہیں بلکہ عالمگیر پوری دنیا میں ایک انسان کو جس طرح رہنا ہے وہ اس کا گائیڈ لائنس اس کو بتلایا گیا ہے، وہ خود نہیں پڑھتا. تو اس پر ہم کو اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پرابلم ہمارے سے کہاں آ رہا ہے. تو یہ پہلے ہم دین سے دور ہو گئے، اور دین سے دور کیا، قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے غافل ہو گئے. یہ کم از کم ایک دو پیڑھی تک، یعنی آج سے 2 دہائیوں پہلے تک کم از کم ایسا ماحول تھا کہ بڑوں کے پاس اخلاق تو تھے، آداب تو تھے، احترام تو تھا، اسلامی ماحول کچھ نظر تو آتا تھا. اب چلتے 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 تعلیم پھر بھی اس وقت تک نہیں تھی، دینی تعلیم، لیکن چلتے چلتے ایسا ہو گیا وہ ادب و احترام سیکھنے والے بھی نہ رہے، سکھانے والے نہ رہے، اور نہ ایسا کچھ رہا. تو احترام ہی ختم ہو گیا. وہ ہمارے دکن میں یا ہمارے علاقے میں مشہور ہے، جو اپنے باپ کو باپ نہ کہے وہ پڑوسی کو چچا کیا کہے گا، وہ پڑوسی کو چاچا کیا مانے گا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح آج ہمارا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ادب، تعظیم، احترام گھروں سے ہم کو سیکھنے کو ملتا تو پھر ہمارے یہ مسائل آج نہ ہوتے. اور پھر پہلی تو بنیادی وجہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. تو پہلی بنیادی وجہ دینی تعلیم سے دوری، دوسری اسلامی ماحول سے دوری، ادب و احترام کا فقدان ہمارے درمیان نہیں رہا. پھر تیسرا خاص طور پر ایسے چیزیں اس وقت آتی ہیں جب ایک دوسرے کے حق تلفی کی بات آتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اللہم صل. تو ایسا ماحول، ایسے حالات ہمارے پاس کب پیش آتے ہیں؟ تو بنیادی دینی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، پھر ادب و احترام نہیں ہونے کی وجہ سے، تیسرا حقوق کی تلفی کی وجہ سے. یہ تو حقوق کی تلفی یعنی حق تلفی، کسی کی بھی حق تلفی، کسی کے بھی رائٹس کو نہیں دیا جانا، یہ انسانیت سے ریلیٹڈ ایشو ہے. مذہب تو ہمارا الحمدللہ عموماً انسانی جان، مال، عزت و آبرو کی بات کرتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر اور کوئی ہمارے لیے روایت نہیں ہونا چاہیے، دلیل نہیں ہونا چاہیے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کا مخاطب ہو کر فرمائے اسلامی اعتبار سے. اب اگر ہم اوپنلی دیکھیں، کامنلی اگر غور کریں تو انسانی جان کی جو ویلیو ہے وہ ہر انسان کے پاس ہے. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو دیکھیں کہ کوئی کسی کا حق لے لیا، حق ادا کرنا ہے، حق ادا نہیں کیا، تو ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جائیداد میں کسی کو حصے کی بات ہوئی تھی، جائیداد کی وجہ سے جھگڑا، پیسے کی وجہ سے جھگڑا، دولت کی وجہ سے جھگڑا، ایک دوسرے کی عزت و احترام کی وجہ سے جھگڑا. اور پھر آج یہ جو ایسے ہی ہم معاشرے میں غور کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجوہات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہیں غور کرنے پر
کہ جو حقوق کی تلفی ہو رہی ہے یہ بہت بڑا آج ہم کو اس پہ نوٹس لینا ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کے معاملے میں ایسی چیزیں اسی وقت میں پیدا ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کی جائیداد ہڑپ لیا، کسی کا کچھ حق بنتا تھا حق نہیں دیا، بھائی بھائی کا حق نہیں دیا، یا حق مانگنے پر وہ غصے میں آ گیا اور وہ اپنے راستے سے ہٹانے کو بڑا آسان سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح حقوق ادا کرنے پر یہ بھی بہت بڑا، بہت حد تک کسی کی بھی جان، عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور ہم بحیثیت مسلمان اسلامی پیغام پر اگر غور کریں تو حق کی ادائیگی ہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے متعلق اسلامی روایات، اسلامی تاریخ، علماء، بڑے بڑے مشاہیر اور حالات اور واقعات کا جائزہ لیں تو اس کا نچوڑ چند الفاظ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب کبھی بھی دنیا میں عذاب نازل کیا، چاہے وہ آگ کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ پانی کا ہو، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قحط کی شکل میں ہو، نعوذ باللہ جس اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، نعوذ باللہ، اللہ آپ کی، ہم سب کی، ہمارے نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا، یاد رکھنا عبادت کی کمی کی وجہ سے نہیں، نماز کی کمی کی وجہ سے نہیں، اگرچہ کہ وہ گناہ ہے، شخصی طور پر اس کو عذاب ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، اس کو پوچھا جائے گا، لیکن مجموعی طور پر جب بھی عذاب آیا اللہ رب العالمین کا حق کی تلفی کی وجہ سے آیا، یعنی ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتا، ماں باپ اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، بھائی بہن کا حق ادا نہیں کرتا، یا بہن بھائی کے حق ادا نہیں کرتا۔ پھر آیا سوسائٹی میں کسی سے لین دین ہو رہا ہے، ایک کوئی خرید رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو کوئی خریدنے والا اپنی زبان پر نہیں ہوتا، سامنے والے کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتا، یا پھر بیچنے والا اس کا حق نہیں دیتا۔ تو جب کبھی بھی اس طرح حقوق کی تلفی ہوتی ہے تو پھر ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس کا سدباب کیسا ہو سکے، ہر مسلمان بلکہ ہر انسان یہ سوچے کہ بھائی میں کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا، اور پھر اللہ رب العالمین یہاں دنیا میں جیسے چاہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو چاہے ہوگا، جیسے چاہے ہیلے بہانے، انفلوئنس، بڑوں سے تعلقات، یا کسی بھی بنیاد پر ارباب مجاز سے تعلقات، وقت کے رولنگ پارٹی سے تعلقات، یا جیسا جیسا بھی ہو جائے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، ہزار بار خدا نخواستہ، اللہ رب العزت کے شان و عظمت کو، مالک یوم الدین کے جلال کو، قہار، جبار اور حاسب کے اس تمام صفات کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عملاً بالائے طاق رکھتے ہوئے، یہ وقتیہ حالات کو پیش نظر رکھ کر ہم ایک دوسرے کی جان لے رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں، یا حقوق کی ادائیگی میں کمی لا رہے ہیں، یہ ایسا کرے، ارے یہ تو پسندیدہ نہیں عمل ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہماری تہذیب اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو کون پوچھنے والا ہے، دیکھ لیا جائے گا، یہ پولیس ہے سنبھال لیں گے، یہ کورٹ ہے دیکھ لیں گے، یہ فلاں ہے ایڈجسٹ کیا لیا جائے گا، ہمارے سیٹنگ سے۔ یاد رکھنا آپ کی ہماری سیٹنگ کسی بھی دنیاوی انسان سے، کسی بھی ارباب مجاز سے ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ وہ رب العالمین جس وقت گرفت کرے گا تو اس کے فرشتوں سے ہماری کوئی سیٹنگ نہیں ہو سکتی، خبر کے عذاب میں کوئی سیٹنگ نہیں ہو سکتی، دوزخ کے عذاب میں کوئی سیٹنگ نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ گرفت پر آ جائے گا نعوذ باللہ، تو اس وقت ہماری کوئی سیٹنگ نہیں چلے گی، اس وقت ہمارے کوئی انفلوئنس نہیں چلے گا، کوئی تعلق نہیں چلے گا۔ تو بہرحال یہ دنیا وقتیہ طور پر ہم ایک دوسرے کو انفلوئنس کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، اپنی قوت بازو کی بنیاد پر اگر ہم اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، تو آپ کو، مجھ کو اور سب کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते, उसका दोज़ख, उसका अजाब, वहां कोई सेटिंग नहीं चलने वाली है। बस अगर वहां भी बचना है, यहाँ भी अमन होना है, तो फिर हमको हुकूक की अदायगी, जिसका जो हक बनता है उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। यही एक बेहतरीन और आसान रास्ता है। इससे हटकर आप सिर्फ अमन 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 कहते जाएंगे तो इससे कोई अमन कायम होने वाला नहीं है। बोलने से अमन कायम नहीं होता, अमली मैदान में आने से अमन कायम होता है। इसीलिए आप आलमी सतह पर भी देखिए कि कौन ऐसा इदारा है, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो यानी यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा हो, या फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ WHO हो, या फिर दुनिया की कोई तंजीम हो, हर कोई ये चाहता है कि अमन हो। लेकिन अमन कैसे हो? तो अमन हुकूक की अदायगी से अमन हो सकता है। जिसका जो हक है, जो शहरी है, जो वतनी है, जो जिसका जो रिश्ता है, जिसका जो जिम्मेदारियां है, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे, हुकूक की अदायगी करे, जिसको जो इज्जत मिलनी है वो बराबर दिया जाए, जिसका जो पोजीशन है, जो स्टेटस है वो दिया जाए, तो इससे अमन कायम हो सकता है। आप अंदाजा करें, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस्लाम का पैगाम लेकर मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों से उठे थे, उससे पहले यही इंसान का क्या हाल था। कत्ल गारतगिरी आम थी, जिसको हम दुनियावी ऑथर्स ने, दुनियावी राइटर्स ने, दुनियावी हिस्टोरियंस ने उसको ब्लैक पीरियड, डार्क पीरियड के नाम से याद किया जाता है। यानी वो दौर, दौर जाहिलियत, जिसको हम हमारे उर्दू में कहते हैं दौर जाहिलियत, तो ये उनके पास भी ये लफ्ज था, एक डार्क पीरियड से उसको याद किया जाता है, मौसूम किया जाता है। तो वो इंसान जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, जो आपस में एक दूसरे का एहतराम नहीं करते थे, जान माल की उनके पास कोई वक़्त नहीं थी, अपना पोजीशन और रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मीलाद, आज दुनिया पर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान कैसा है उस पर भी आप गौर फरमाएं। सिर्फ 50 से 60 साल की मेहनत में, या यूं कहीं अगर खास तौर पर ऐलान नबूवत से पहले के अगर 40 साल अब हम हटा दें, तो सिर्फ 23 साल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में एक ऐसा अजीम शान रिवाज, कायदा, कानून, निज़ाम तरवीज दे दिया, कायम फरमा दिया, कि जिससे इंसानी जान के एहतराम, इंसानी इज्जत, इंसान की इज्जत और आबरू का एहतराम लोगों के दिलों में जागुज़ी हो गया। वरना हर कोई एक दूसरे की जान के लाले थे, बल्कि हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो अरब लोग ऐसे थे कि किसी से सिर्फ किसी की ऊंट या किसी का घोड़ा दूसरे के कुएं से पानी पी लेता या चारा खा लेता, तो सिर्फ इसी बात पर नस्लों तक लड़ाई चलती थी, कत्ल गारतगिरी चलती थी। ऐसे इंसानों को आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर 23 साल जिंदगी, यानी कुरान के नुज़ूल से लेकर, यानी बेसत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद से सिर्फ 23 साल के मुख्तसर से अरसे में उनकी ऐसी तरबियत फरमाई, उनको ऐसे अखलाक, ऐसी तहजीब सिखाई कि वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते चलते दुनिया पर खुद रोल करने लगे, हुक्मरान बन गए। वो जो रोमन और पार्शियन एम्पायर, यानी हमारे ईरान की हुकूमत उस वक्त थी और फिर रोम की हुकूमत उस वक्त थी, दो ही मशहूर सल्तनतें थी। ये जाहिल, यानी आपस में झगड़ा करने वाले समझकर इनको अपनी सल्तनत में शामिल भी नहीं करते थे। लेकिन जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को उन तक पहुंचाया, उन्होंने कबूल किया और उसको पसंद भी किया, कबूल भी किया, और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को कबूल फरमाई, उनका तज़किया किया, उनको उनके दिलों की आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई फरमाई, तो फिर क्या हुआ, वो रोमन एम्पायर और पार्शियन एम्पायर जाकर वो खत्म हो गई। ये मुसलमान जो आपस में, ये इंसान, ये नस्ल जो सिर्फ कुएं में पानी पीने से ऊंट के नस्लों तक लड़ते थे,
दोनों मुकामात पर भी उनकी हुकूमत, उनकी हुक्मरानी कायम हो चुकी थी। तो फिर सवाल ये होता है कि क्या आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हथियार या न्यूक्लियर बना कर दिया था? नहीं। क्या दिया था? अखलाक सिखाए थे, हुकूक की अदायगी सिखाए थे, ये सारी कुरान और हदीस की तालीमात सिखाए थे, जो एक बहुत बड़े इनकलाब की शक्ल में आज हमारे लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया तक एक बेशुमार नज़ीर हमारे इस्लाम ने और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पेश फरमाया। बिलाखिर कहने का मकसद ये है कि हर हाल में बात कहीं भी जाओ आकर एक ही मुकाम पर टिकती है कि खास तौर पर इस जमाने में हमको बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी औलाद को इस्लामी तरबियत सिखाना है, इस्लामी तालीम सिखाना है। कुरान और हदीस सिर्फ रीडिंग नहीं, बल्कि एसएससी तक जो बच्चे पढ़ते हैं, जिस अंदाज में 250 से 300 किताबें पढ़ते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे, उसमें साइंस हो गया, सोशल हो गया, मैथ्स हो गया, जिस से हो गया, इसी एतबार से कम अज कम कुरान और हदीस और बुनियादी तालीमात जिनमें हुकूक का जिक्र आता है, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, शौहर के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, ये सारी चीजों को सिखाया जाता है। कम से कम अपने बच्चे को वो लाजिम सिखाएं। वरना याद रखना इस बात को कि खुदा ना खास्ता 1000 बार खुदा ना खास्ता बच्चे हमारे पढ़ते पढ़ते अच्छे ग्रेजुएट तो बन जाएंगे, तरक्की करते करते सदर जमहूरिया भी बन जाएंगे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों को वो कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। इस्लाम और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। क्यों? वो खुद इस्लामी तहजीब से वाकिफ नहीं, वो खुद इस्लामिक कल्चर से वाकिफ नहीं। तालीम 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 कॉम्पिटिशन में पढ़ते 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 आला से आला मनसबों तक, ओहदा तक पहुंच चुके, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों की कोई मदद ना कर सके, और इस्लाम और मुसलमानों के जो इस्लामिक कल्चर है उसको अपनाते हुए उसमें खुशी और फख्र महसूस ना कर सके, तो क्या फायदा ऐसे बच्चों की तालीम की, क्या फायदा ऐसे डिग्रियों की, क्या फायदा ऐसे दौलतमंदों की। तो बहरहाल मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, यकीनन इन डिग्रियों के साथ, इन ओहदों के साथ अगर दीनी तालीम हो, दीनी तालीम के साथ साथ इस्लामी तरबियत के साथ साथ ये ओहदे हों, ये तालीम हो, ये ग्रेजुएशन, ये डिग्रियां हो, तो फिर सोने पर सुहागा होगा। इस्लाम मना नहीं करता। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि खास तौर पर जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, ये बात ऐसे ही है, खुदा ना खास्ता कि हम कह रहे हैं कि फलां घर में आग लगी है, तो वो घर में आग लगी, वो दूर वाले, तो चूंकि हम उसी इलाके में रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, उसी महल्ले में रहते हैं, उसी गली में रहते हैं, खुदा न खास्ता वो आग जलते 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 कहीं हमारे घर को भी राख न बना दे। तो इसलिए आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि अब ना सही तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं के अल्लाह मोशन में हम आकर ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब सिखाएं, पड़ोसियों के हुकूक सिखाएं, एहतराम सिखाएं, इज्जत व आबरी, ये जो ऐसे अहादीस शरीफा है जिनमें इंसान की जान का, इंसान की इज्जत व आबरू का जिक्र किया गया है, ऐसी चीजों को अपने बच्चों के जहन में बचपन में ही अगर हम पेश कर दें, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आगे चलकर इसके बहुत अच्छे समरात होंगे। और फिर हमारा जो माशरा जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में इस बला से, इस खतरनाक मामले से हम दूर हो सकते हैं। ये किसी एक का कत्ल, ये कोई मामूली बात नहीं है। खुदारा हम इसलिए भी हम अपना हाथ रोक लें कि ये इस्लाम और मुसलमानों पर एक किस्म की तोहमत होती है, इस्लाम और मुसलमानों के मामलात में, कि इस्लाम तो अमन का पैगाम है। कहाँ देखो मुसलमान खुद आपस में एक दूसरे की जान के लाले पड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला, ये जितने भी कत्ल हो रहे हैं, कातिल हैं, उनका बैकग्राउंड उठा कर देखो क्या है। कोई लिटरेसी, इलिटरेसी, जहालत, न दुनिया की तालीम न दीन की तालीम। कम अज कम दुनिया की तालीम होती तो भी अच्छा था। बस 5,000 10,000 के लिए, थोड़े से मामूली पैसों के लिए हम इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। तो इस पर जितना भी हम कफे अफसोस मले हमारे लिए कम है। बस सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। ये जिस तरह की तहरीक बज़्म तलबा क़दीम जद्दा ने और इस तरह की तंजीमों ने की है, उसका अमल ये होगा कि हम इस तहरीक को आगे बढ़ाएं, इस बात को आगे बढ़ाएं कि हम इंसानों को, अपनी औलाद को इस्लामी तहजीब
इस्लामिक कल्चर, इस्लामी माहौल सिखाएंगे। कुरान और हदीस में इंसानी जान की जो वैल्यू बताई गई है उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, हम खुद भी एहतराम करेंगे, अपनी औलाद को भी सिखाएंगे, तो तब कहीं जाकर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुकूक अदा होंगे तो सालेह माशरा वजूद में आएगा। जब हुकूक की तलफी होते रहेगी तो फिर आप हजार बोल लें, हजार लिख लें, हजार कर लें, हुकूक की तलफी होगी तो फिर ऐसे भयानक और खतरनाक जराइम को रोकना ये हमारे और आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। आखिरत में भी फिर इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी कठिन और भयानक अजाब का जिक्र किया है। याद रहे, फिर एक दफा अर्ज कर रहा हूँ कि जो किसी मोमिन की जान को नाहक कत्ल करता है, किसी मोमिन को नाहक कत्ल करता है, तो उसका अजाब आप कंपेयर कर लें खालिदीना फीहा, जो काफिरों के लिए अजाब जिस तरह का जिक्र किया गया है, ऐसी वईद एक मोमिन की जान लेने पर जिक्र आया है। आप ये थोड़ा सा पैसा, क्या वजह होगी कि इतने लाख करोड़, बेशुमार करोड़ की भी बात हो, बेहिसाब जायदाद की भी बात हो, इंसानी जान की इसके पास कोई हकीकत नहीं है। इंसान की जान उससे अहमियत वाली है, उससे अजमत वाली है, उससे एहतराम है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी हदीस शरीफ हमेशा आपके, हमारे और सबके पेश नजर रहे। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ये तमाम अकाबिरीन बज़्म तलबा ख़दीम जद्दा, उनका तहे दिल से इस मौके से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया, और एक अजीम काविशें आपकी हर मौके से सिलसिलावार चलती हैं माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और फिर ख़ास तौर पर ये जो मुख्तलिफ उन्वानात और बड़े बड़े उलमा किराम से आपने वक्त लिया है, आगे वो उलमा किराम माशाअल्लाह उनके भी बयानात को हमको सुनना है। ये एक कोशिश है इंसान की, जितनी बस की बात है उतनी कोशिश अगर वो कर लिया तो ठीक है। बाकी अस्सायु मिन्ना वल इत्मा मिनल्लाह, हमारे कोशिश हमारे हाथ में है, उसके बेहतरीन नताइज इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसका बदला देगा। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए खास तौर पर फिर एक मरतबा मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ हमने कहने और सुनने की कोशिश की है, जो कुछ भी कहा और सुना है, खुलूस नियत के साथ सबसे पहले मुझे, आपको और हम सबको उसको समझने, उस पर अमल करने और उसका काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहमुर राहिमीन, हम सब हिदायत चाहते हैं मौला, हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, हमको और हमारी उम्मत, पूरी उम्मत मुस्लिमा को गुनाहों से बचने के आसान रास्ते मुहैया फरमा। अल्लाह रहमुर राहिमीन, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमें बड़ों की इज्जत करने और छोटों पर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रहमुर राहिमीन, ये प्रोग्राम के इनेक़ाद में जो भी जिस तरीके से भी शिरकत किए हैं मौला, शामिल हुए हैं, अपना हक अदा किए हैं, अपनी काविशें इसमें शामिल किए हैं मौला, सबकी जिंदगियों में खैर और बरकत अता फरमा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी में इसकी बरकतें न सिर्फ हम तक बल्कि हमारे क़यामत तक के आने वाली नस्लों में इसको जारी व सारी फरमा। अल्लाह रहमुर राहिमीन, हम सब खत्म होने वाले हैं, अल्लाह तू हमेशा बाकी रहने वाला है मौला, हमारी जिंदगियों में बरकत अता फरमा, हमारी नस्लों में, क़यामत तक आने वाली नस्लों में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ और उसकी बरकतें हमारी नस्लों में जारी व सारी फरमा। अल्लाह हमारी छोटी तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस हमें मौला इज्जत व आफियत की जिंदगी और ईमान और सलामती की मौत अता फरमा। अल्लाह रहमुर रहीम, हम सब के दिली जायज मकासिद को खैर व आफियत के साथ पूरे फरमा। अल्लाह रहमुर रहीम, हमारी टूटी फूटी दुआओं को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े खैर में कबूल मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.